Jats are still running riot in Haryana. There have been clashes that have been reported between the Jats and the army on National Highway 1 in Ransoli village near Sonipat. Now, according to reports just coming in, army Jawans, after being attacked, had to open fire to disperse a mob. Several protesters were injured in army firing near Sonipat. That's the latest that we are bringing to you as you see these 4 pictures of the current situation in Haryana. India Today's Manjeet Sehgal now joins me for more on this. Manjeet, tell us about these fresh clashes between the protesters and the army. Well, Gaurav, more than a dozen protesters were injured when the army resorted to firing to disperse the protesters which had blocked the national highway at Larsoli village in Sonipat. The condition of 3 injured protesters is critical. They've been admitted to a local hospital. Army resorted to firing when the protesters clashed with the contingent and refused to lift the siege. Gaurav, the army had earlier fanned the protesters in the morning, but they again returned to the spot and blocked the road. Fresh violence has also been reported in Kathal town after protesting Jats put some vehicles on fire and attacked shops. The administration has claimed a curfew in Kathal. Okay. Now, in a situation like this, when talks had made some headway, what happened? There was some talk that the protesters will go back home. Their panchayats are going to tell them that the situation is now to be brought down to normal so that talks can move forward. Where did things go wrong? Well, Gaurav, as we know that most of the protesters are leaderless. They are not being guided by the leaders. There are a number of factions who have organized the protests. We know that there are 36 bradaris of Jats who are controlling this agitation. So a section of Jat community believes that they should not lift the siege until and unless the government gives them in writing reservation policy for them has been framed or it has become a law. So they are not ready to bust. They are not ready to lift a siege. They are being misguided, and while some of them have returned to their homes, but some of them are still on the roads and are in fact, Haryana's Education Minister Ram Vilas is just reacting to the current situation. Let's quickly cut across and listen into him. पुलिस जो है कहीं कोई किसी तरीके को लेके किसी की जिम्मेदारी तय की गई है और क्या ये जातीय हिंसा इसको मानती है सरकार? देखिए पवन जी, जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और बड़ा चिंताजनक हुआ, परंतु अभी क्योंकि रिपोर्ट्स फील्ड से आना बाकी है, किसी एक विभाग को किसी एक अधिकारी की जिम्मेदारी का अभी इसमें कोई चर्चा नहीं हुआ। आज विपक्ष के नेता, हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप बीजेपी सरकार के ऊपर लगाया। ये एक बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भिवानी के, उनका इसमें दंगा भड़काने में आरोप लगाया उन्होंने, अभय सिंह चौटाला ने। आपके विधायक मनीष ग्रोवर के ऊपर आरोप लगाया। एक तो ये कि ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक कितनी जाने नुकसान हुआ है। आपके पास मंत्रिमंडल को लेटेस्ट और मुझे लगता है सच्चाई जानकारी जो दी गई होगी, क्योंकि सब अखबारों में 18 की कोई फिगर छपी है, कोई 15 की फिगर छपी है। वास्तविकता क्या है? 10 हैं, 12 हैं, 5 हैं, कितने लोग हैं? देखिए उसमें जो अब तक जो जाने गई हैं उसका जो मंत्रिमंडल की बैठक में जो अधिकारियों ने दिया उसमें 14 की जानकारी आई है। 16 की जानकारी आई है। और वीडियो वायरल के लिए देखिए, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो आप सब लोग थे वहां और हुड्डा साहब ने मेरे उस बयान पर इतराज किया था। मैंने अपने उस बयान का खंडन कर दिया था, उनकी संतुष्टि थी। और हरियाणा में शांति स्थापना के लिए हम कुछ भी करना जो उस समय तो हमने उसका खंडन कर दिया था। पर अब चीजें धीरे धीरे सारी जो छण करके आ रही हैं आएंगी।
हम इस समय सारी हरियाणा की जनता से बारंबार अपील करते हैं कि इस समय हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है और इसमें शांति की स्थापना होनी चाहिए। वीडियो में जो आरोप लगाया उसके बारे में बीजेपी नेताओं ने जो आरोप लगाया सर आपने कहा नहीं, विधानसभा विधेयक लाने पे सरकार की क्या तैयारी, जो सरकार ने कमिटमेंट किया विधेयक लेके आएगी, उसकी क्या तैयारी है? रूप में लाएंगे विधेयक? और किस रूप में विधेयक लाएंगे ये बताइए। देखिए, वो विधेयक आएंगे क्योंकि कल दिल्ली में हमारे प्रभारी जी ने अनाउंसमेंट किया है और भारत सरकार ने एक वरिष्ठ मंत्रिमंडल के लोगों की एक कमेटी वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में हमारे माननीय गृह मंत्री ने बना रहे हैं, उनके निर्देश अनुसार। और हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस दिन आप सबको बताया था सुरेंद्र, हमने नहीं अभी ताजा बात ही हो रही है और जो 2 सवाल आएगा वो ओबीसी का आएगा, एससी का आएगा, क्या आएगा? आज सर ये सवाल का जवाब एक इधर शर्मा जी ये बताएं कि जो बिल आएगा वो ओबीसी का आएगा, एससी का आएगा, किस रूप में बिल आएगा? और एक गिरिराज जी, हाँ गिरिराज जी, जो बजट सत्र की तारीख तय हुई है नंबर 1, नहीं। नंबर 2 जो बिल आना है वो एसबीसी में आरक्षण के लिए आएगा, ओबीसी में आरक्षण के लिए आएगा, ईबीसी में आरक्षण के लिए आएगा, किस रूप में आएगा? कानूनी अड़चनें देखिए गिरिराज जी, जो विधानसभा के सत्र की तारीख अभी तय नहीं हुई। दूसरा, जो विधेयक की आप बात कर रहे हैं, हमारी ऑल पार्टी मीटिंग थी, आपने सबने कवर किया था और उस मीटिंग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस से और इनेलो से, और इसमें ये कहा था कि भाई आप दोनों मिल करके इसके ऊपर ड्राफ्ट कर लीजिए और हम सरकार की तरफ से उसको विधानसभा में ले आएंगे। वो उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। Sources are saying that prima facie it appears that DU Professor S.A.R. Gilani encouraged anti-India slogan shouting. The statement of another professor, Ali Javed, points to two things. Gilani lied about the nature of debate and